जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज मैं आईपैक में आया हुआ हूँ इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहाँ पे ढेर सारी बातें मैं कल भी कर रहा था, आज फिर कर रहा हूँ। और एक बार फिर से मेरे खास मेहमान डॉक्टर अमित जैन, जो कि डीन एकेडमिक्स हैं, जुड़ गए हैं। कल बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने हमें बताई थी 2047 में विकसित भारत के बारे में। और आज भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, बहुत सारे सवालों को ऐसे लेकर आए हैं कि बच्चों को उन्हें समझना और उनसे जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे डीन एकेडमिक्स डॉक्टर अमित जैन जी का। सर बहुत बहुत धन्यवाद ईशान जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। जी, तो सर बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप उठा रहे हैं बच्चों की ग्रोथ के लिए। वो मुझे भी जानने को बहुत बेटर लग रहा है कि शायद मेरे डीन एकेडमिक्स ने उठाए होते तो बहुत अच्छे से मैं भी ग्रो कर पाता। जी, तो मैं पहला सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि आज के टाइम पे जो इंट्रैक्शंस होते हैं, ज़्यादातर जो कंपनीज़ आती हैं बच्चों के साथ जुड़ती हैं, उनके जो बीच में जो गैप्स होते हैं उसको ब्रिजिंग करने के लिए आईपैक किस तरीके से काम कर रहा है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा जीशान जी। Bridging academia and industry basically means that the role of industry institute interaction cell that comes into the picture. So at IPAC, at Indraprastha Engineering College, we are committed to go far beyond the classrooms and textbooks. Guided by the powerful vision of this Viksit Bharat 2047, we are nurturing the innovators, the leaders of tomorrow, and the creators. Also, we can say that the responsible global citizens also. So the key driver in that case is Industry Institute Partnership Cell, Industry Institute Interaction. This serves as a dynamic platform, I can say, between the academia and the industry, and this bridges the gap between both of them. There are many aspects of industry interaction, industry academia interaction, in terms of consultancy projects, in terms of collaborations, in terms of the various academic research projects between the industry and academy. And as I see, IPAC conduct several meetings with the many organizations. So I just want to know what their outcomes with us. Yes, Jishanji, over the years we have connected with these associations like Ghaziabad Management Association, Saibabad Industries Association, Indian Industries Association, Noida Management Association, and we have conducted several meetings with them for the betterment of the connection between the industry and academia, and all these associations are well worked with us. These interactions have opened the multiple doors also for the meaningful collaborations with the college and the long-term partnerships also. तो बहुत सारे MOUs होते हैं, इंडस्ट्रीज विजिट्स भी की जाती है, बच्चों को एक्सपोजर्स भी दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे आईपैक जो होता है फोकस्ड रहता है। तो आगे की उनके क्या फ्यूचर प्लान्स और क्या फ्यूचर फोकस्ड उन्होंने किया हुआ है? ये जो इस तरीके के हम MOUs कर रहे हैं कंपनीज के साथ, इनका बेसिक पर्पज़ है कि हम रिसर्च कोलैबोरेशंस करना चाह रहे हैं, हम ग्लोबल लेवल पे कोलैबोरेशंस करना चाह रहे हैं। दीज MOUs जस्ट पेव अस द वे for the industrial trainings, for internships, for live projects, and the industrial consultancies and the research collaborations, which will be directly benefiting our students and the faculty in the college. So IIC Cell also facilitates them for the industrial visits, giving students a first-hand exposure to maintain and manufacturing units, to see the units, the corporate environments and the operational practices. तो इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट का जो सेल है जिसके थ्रू आप लोगों के बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, 2047 में के मद्देनज़र अगर मैं देखूं विकसित भारत के थ्रू, तो आईपैक इन चीज़ों को किस तरीके से समेट के एक साथ लेके चल रहा है? ये बहुत सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है IIC का, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप सेल का। इसमें बहुत सारे सेमिनार्स, एजुकेशन विजिट्स, कॉन्क्लेव्स हम सब ने अटेंड किए हैं, हमारी टीम ने अटेंड किए हैं। तो वहाँ से जो एक मीनिंगफुल गाइडेंस आ रही है, जो एक इंट्रैक्शन हो रहा है, जो एक कनेक्शंस बढ़ रहे हैं इंडस्ट्री और एकेडमी के बीच में, दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स इन द कमिंग टाइम्स। तो इन सब का ये बेनिफिट्स है कि जो हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के साथ, जो प्रोजेक्ट्स कंसल्टेंसी के रूप में हमारे पास कॉलेजेस में आ रहे हैं, जैसे अभी फ़िलहाल मैं कह सकता हूँ आपसे कि आने वाले हफ्ते में ही CEL का, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का एक ट्रेड टेस्ट होने वाला है कॉलेज के अंदर ही। तो दिस टाइप ऑफ वर्क्स हैव बीन कोलैबोरेटेड बिटवीन द कॉलेज एंड द इंडस्ट्री। एंड एट द लास्ट एक क्या मैसेज सभी स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं फॉर देयर बेटर फ्यूचर? मैं सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि वो इन सब इमर्जिंग ट्रेंड्स में अपने क्यूरिकुलम के साथ अलाइन रहें
और सारी इंडस्ट्रियल विजिट्स को अच्छे से करें, सभी जगह पर अच्छे से प्लान से जाएं, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड इट वेल और दे कैन अंडरस्टैंड इट बेटर इन दी एकेडमिक प्रैक्टिस। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर अमित जैन जी, जिन्होंने ढेर सारी बातें हमसे करी, आईपैक के बारे में बताया, इंडस्ट्रीज़ विजिट के बारे में बताया, MOUs के बारे में बताया आईपैक के, और कितना ज़रूरी है सारा ये सब कुछ आज हमने जाना। तो फिलहाल आपसे इजाज़त देते हैं, उम्मीद है कि आपको भी बहुत कुछ बातें यहाँ पे सीखने को मिली होंगी, 2047 के विकसित भारत के बारे में जानने को मिली होंगी। लेकिन फिर आपसे मुलाकात होगी और ढेर सारी बातें होंगी। अलविदा।